Hello friends, welcome to our channel Analytics Science Academy and welcome to our these General Studies classes, dear friend, where we have been discussing certain important issues related to General Studies preparation. And today's session, dear friend, that is very special session. In today's session, we are going to discuss about all the sources of GS Mains 2025 paper, that is specially paper 1, dear friend. So GS का जो पेपर 1 है उसके सोर्सेस क्या रहे इस बार के एग्जाम में। और देखिए कई बार एग्जाम के बाद हमें ऐसा लगता है कि देखिए पेपर इजी था या पेपर टफ था, हाँ इस बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए। बट देखिए द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज दैट वेरी सिस्टमेटिकली वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट दैट हाउ you can have a clear understanding that from where exactly these questions have been asked. So that is the purpose of today's session, dear friend, that what are the sources of GS paper 1's mains 2025 that we are going to discuss. But before starting this session, dear friend, there are some basic information about me. My name is Pankaj Shukla and I have been teaching civil services aspirant since last more than 1 decade. And in your civil services preparation, dear friend, if you have any doubt, any query, you can connect with me through these social media platform, and whatever your doubts, whatever your queries are there with regard to this preparation, you can discuss with me through these channels, dear friend. Now let's start with today's session, dear friend. और देखिए हर साल की तरह इस बार भी देखिए जीएस के मेंस के पेपर्स हुए और मेंस पेपर होने के बाद देखिए अलग अलग लोगों के रिएक्शंस है दोस्तों. Some people they are saying paper was on expected lines. Some people are saying that especially GS paper 1 that was not on expected lines. Outwardly it might appear कि ये जो questions हैं they have been asked from the topics that are mentioned in your syllabus, but when you try to attempt it then you will find that there are some specific things that you need to write in these answers. और कई बार देखो दोस्तों ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल के बाद आप इस चीज़ को easily analyze कर पाते हैं कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए. But when you are actually writing your exam at that time, dear friend, very often it happens that you are not able to attempt questions with the same efficiency as you have done in your test series or in your practice session. तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेंस 2005 का जो पेपर हुआ जीएस पेपर 1 उसके सोर्सेस है क्या दोस्तों. बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सोर्सेस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर 2026. जब आप 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, so what should be your focus area, how you should channelize your preparation, you should not ignore these certain aspects. So repeatedly we have been discussing one important thing, dear friend, that whenever you are preparing for general studies, so always you have to keep 3 things in mind. पहला आपका syllabus, dear friend. Most important thing is your syllabus, dear friend, and here you will find that syllabus is the most important thing, dear friend. Syllabus you have to complement with previous year questions, because ये जो previous year questions होते हैं they tell you about the trend and contemporary developments, dear friend. इसको आप current events बोलते हैं. और ये contemporary development या current events को approach करने का भी एक तरीका होता है. Very often it happens that there are certain events that are in news because these events are very special events, dear friend. After 100 years, after 200 years, if something happening, if some 100-year celebration you are doing or 200-year celebration of something you are doing, definitely year after year we have seen that it becomes very important from UPSC examination, especially in general studies, dear friend. And keeping that thing in mind, that if you are approaching current affairs, so what exactly should be your real approach. देखिए ऐसा नहीं है कि आप बस द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ते जा रहे हैं या कोई करंट अफेयर्स मैगजीन को पढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं. Whether you are able to produce it in examination hall or not, that is also very crucial. So if you look into GS paper 1, dear friend, roughly there might be some 5-10 marks variation. Like suppose if I am saying कि from Indian society 80 marks questions are there, some teacher might say कि 75 marks questions are there, 5 marks they will add in geography, and they might say that in geography 90 marks questions were there. But this is a roughly breakdown of the questions that have been asked from Indian society related issues. 80 marks questions are there. Geography related issues, 85 marks questions are there. From ancient history, art and culture, modern India, you will find that mostly it was on expected lines, dear friend. Mostly it was on expected lines. As far as
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज कंसर्न, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, 5-10 मार्क्स का डिफरेंस है। और कई बार देखिए ऐसा लग रहा है कि जो इंटायर जो पेपर है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट ऑफ अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। तो अगर आप अकबर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, हालांकि ये मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन है, बट आर्ट एंड कल्चर में भी आप रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, तो व्हेन यू लुक एट दिस पेपर इन फर्स्ट ग्लांस, पहली बार आपको देखने पे ऐसा लगेगा कि मोस्टली दीज क्वेश्चंस दे आर ऑन रिपीटेड लाइंस डियर फ्रेंड, ठीक है। चंदेला आर्ट फॉर्म, क्लाइमेट चेंज, दीज आर द कीवर्ड्स डियर फ्रेंड, these are the keywords. Non-farm primary activities, these are the keywords dear friend. So when you look at this solar energy generation, so आपको ऐसा लगेगा कि mostly paper is on expected lines और easily इसे attempt किया जा सकता है। But now we will look into the details dear friend. Now we will look into details. So when you look into the details, you will find that there have been certain themes like repeatedly in UPSC GS paper 1 mains examination, questions have been asked from tribes, questions have been asked from sustainable development. So ये कुछ ऐसी themes हैं जो लगातार रिपीट होती रही दोस्तों पिछले कुछ सालों में। और जब आर्ट एंड कल्चर का आप देखेंगे और जब आप देखते हैं कि देखिए डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और हड़प्पन आर्किटेक्चर, तो देखिए व्हाई इट वाज इन न्यूज। सो 100 years ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाउ इट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स। तो such articles were there in different newspaper in current times dear friend. Main aspect of expected lines dear friend, ये expected line का क्वेश्चन है। इसमें ऐसा नहीं कि आप इसे नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। The sculptures fill the Chandela reform with resilient vigor and breadth of the life elucidate। ये जो elucidate वाला कंपोनेंट है, unless until आपने इसको सिंसियरली पढ़ा है, हो सकता है कि एग्जाम हॉल में आप इसे अटेम्प्ट ना कर पाए, भले ही आपने चंदेला आर्ट फॉर्म पढ़ा होगा दोस्तों। But when they are asking that you should explain it with example, unless until you have studied it sincerely, probably you may not be able to attempt. Climate change, repeatedly we have been discussing. How are the climate change and sea level rise affecting the way existence of many island nation? तो देखिए इससे रिलेटेड आर्टिकल्स लगातार न्यूज में थे और ये एक ऐसी थीम है दोस्तों जो प्रीवियसली लगातार यूपीएससी ने पूछी है। 2023 में क्वेश्चंस हैं, 17 में, 14 में। So repeatedly questions have been there from climate change. So this question you may say that it is on expected lines, dealing with syllabus and previous year question. Then non-farm primary activities. How are these activities related to physiographic features in India? Discuss with suitable example. That is important thing dear friend. Or again I am saying, it is again a repeated theme question. 2018 question was there, 2021 question was there. So देखिए मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ कि when you are preparing for general studies from mains point of view, your syllabus, previous year question trend and current or contemporary development, these are the three components to address general studies, paper 1, paper 2, paper 3. Paper 4 is remarkably different from other paper, but otherwise आपको stick करना है syllabus पर, previous year questions के trend पर और contemporary development को। तो explain briefly the ecological and economic benefit of solar energy repeatedly dear friend. Solar energy repeatedly it remained in focus in UPSC mains examination. Syllabus में directly इस तरह से लिखा हुआ है, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries various parts of India. So they are asking कि ecological and economic benefit of the solar energy generation in India। और देखिए very recently India overtakes Germany to become third largest generator of wind and solar power। तो कहीं ना कहीं देखिए ये न्यूज में था और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ऐसी बहुत सारी योजनाएं दोस्तों, सूर्य घर योजना, लगातार देखिए इस पे बात होती रही है और पिछले कुछ टाइम में आप देखें तो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड लाइन पर ही क्वेश्चन था। 2020 में भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया, 15 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको एक ट्रेंड मिल रहा था दोस्तों। सुनामी डायरेक्टली डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी डायरेक्टली डियर फ्रेंड, which are tsunamis, how and where are they formed, what are their consequences। डायरेक्ट क्वेश्चन है सिलेबस से दोस्तों, रिपीटेडली ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए बहुत सारा कंटेंट आप पढ़ रहे हैं। रिपीटेडली मैं आपको ये एम्फसाइज करता हूं कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, कभी ना कभी तो आपको प्रिपेयर भी होना है। देखिए केवल प्रिपरेशन नहीं करनी है, बहुत सारा कंटेंट आपको कलेक्ट नहीं करना है।
You should stick to your syllabus. Repeatedly, I'm saying. Okay, definitely, there might be certain questions that will be on unexpected lines. Definitely, there might be some paper 1, paper 2 और paper 3 जो रिलेटिवली आपको डिफिकल्ट लगे, बट यहाँ पर आप देखेंगे एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पर क्वेश्चन है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लगे कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया है। स्मार्ट सिटी डियर फ्रेंड, लगातार स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में लगातार हम आपके साथ बात करते रहे, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो ये जो अर्बनाइजेशन की थीम है पिछले कुछ सालों में आप पाएंगे रिपीटेडली डियर फ्रेंड, repeatedly questions have been asked in 2024, 23, 21, 19, 15, 13, and that's why I always say कि previous year question trends are very important. और जब आप इन previous year questions को attempt करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आने वाले preparation, आने वाले जो questions हैं उनकी भी आप preparation करते हैं। The ethos of civil services, देखिए ये एक ऐसा question था जो मुझे ऐसा लगा कि हालांकि this question have been asked in post independence India, but it has close relation with योर जीएस पेपर 4। तो जीएस पेपर 4 की आपने प्रिपरेशन की ही है, ये बता रहा है कि कैसे देखे जो सिविल सर्विसेज के इथॉस हैं, ठीक है, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया दे हैव इवॉल्व अलोंग विद नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। तो ये एक अच्छा सवाल मुझे लगा जिसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। द इथॉस ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। तो देखिए दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन डियर फ्रेंड, एंड हियर आई एम सेइंग देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ग्लोबलाइजेशन। मुझे लगता है देखिए यहाँ पर कुछ टाइपिंग में एरर हो गया, अदरवाइज यहाँ पर क्वेश्चन था ग्लोबलाइजेशन का। सो ग्लोबलाइजेशन अगेन डियर फ्रेंड, आई एम सेइंग कि ग्लोबलाइजेशन अगेन इट रिमेन अ रिपीटेड थीम, दैट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। सो अगेन यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। ये भी एक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो थीम है उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर आप पाएंगे कि ज्योतिबा फुले से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। सोशल रिफॉर्म्स आप पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं। 200वीं सालगिरह मनाई जा रही थी ज्योतिबा फुले की, और इस वजह से दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यहाँ पर पूछा भी गया है कि ज्योतिबा फुले की जो राइटिंग्स हैं, उनके जो इफर्ट्स हैं सोशल रिफॉर्म ऑन द इशू ऑफ सबअल्टर्न क्लासेस, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो सबअल्टर्न क्लासेस हैं, एक व्यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उस व्यू को देने की कोशिश की है किसने? ज्योतिबा फुले ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। देन कंसोलिडेशन प्रोसेस, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। और यहाँ पर एक डायरेक्ट सवाल देखिए, ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ द इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंटर रिलेशन। ऐसे ही आप इसे पढ़ते हैं। अगर आपने विपिन चंद्रा सर की भी बुक पढ़ी है तो भी आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में इन सारी चीजों को इसी प्रकार से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए रिपीटेडली हमने ऐसा डिस्कस किया कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता रहा है दोस्तों। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगेन इट इज फ्रॉम रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर। 2019 में भी सवाल पूछा गया है, 2013 में भी इसी तरह के अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से सवाल पूछे गए। गिव ए जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ, ठीक है। ये क्वेश्चन जब तक आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने इस चीज को पहले नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि एग्जाम हॉल में आप इसे अटेम्प्ट न कर पाए। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, अगेन आई एम सेइंग इट इज आस्क्ड फ्रॉम द सिलेबस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड देखिए क्वेश्चन लग रहा है। तो अगर आपने सिलेबस की मास्टरी की है, इट विल बी इजी टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन। हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट यूनिक क्या है दोस्तों? यूनिक ये है कि यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्पेसिफिक यूटिलिटी पूछी जा रही है, ठीक है, कि ये जो टेक्निक है जीआईएस एनआरएस विद रिगार्ड टू लोकेशनल एंड एरिया प्लानिंग डियर फ्रेंड। लगातार दोस्तों हमने ऐसा डिस्कस किया। देखिए आउटवर्डली आपको ऐसा लग सकता है कि ये जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, बट अर्बनाइजेशन के साथ, अर्बन प्लानिंग के साथ इसे अटैच करके पूछा जा रहा है। डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइजेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एरिया आप पढ़ते हैं, ओशियन करेंट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। तो अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम योर सिलेबस, स्टैटिक क्वेश्चन डियर फ्रेंड। रिपीटेडली 2021, 2020 questions have been asked on the similar line.
डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द गंगा रिवर बेसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सॉयल एंड वाटर। सो देखिए यहां पर आप पा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड अगेन ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सिलेबस से डायरेक्टली पूछा जा रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन पहले भी, डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आपसे पूछे गए। यहां पर आप देख सकते हैं, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड। देखिए ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज, ओबेसिटी, ठीक है, लाइवलीहुड डेंजर्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस, लगातार हम इसको आपके साथ डिस्कस पहले भी करते रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए ओबेसिटी, फास्ट फूड टेक्नोलॉजी या फास्ट फूड जो फूड का कल्चर है, इसके बारे में हम आपके साथ बात करते रहे। तो हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देयर आर इंक्रीज हेल्थ कंसर्न इन मॉडर्न सोसाइटी, illustrate your answer with the Indian experience. So again you will find it is a question related to current affairs, important social issue. So expected lines dear friend, sustainable growth and sustainable development, ये एक ऐसी रिपीटेड थीम रही है दोस्तों। आप GS3 में भी इसके बारे में बात करते हैं, GS1 में भी बात करते हैं, पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहां पर भी आप पाएंगे कि दिस रिमेन्स वन इंपॉर्टेंट थीम। और ये सवाल देखिए, ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, tribe, it has remained one very frequent theme that UPSC has been visiting again and again dear friend. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ट्राइब, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली यू आर सपोज टू अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशन हॉल विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो दीज वर टोटल 20 क्वेश्चंस डियर फ्रेंड। और अगर आप ध्यान से देखें तो सिलेबस को अगर आपने स्टिक किया है, करंट अफेयर्स को अगर आपने प्रिसाइजली कवर किया है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड, you will definitely get a direction that how to attempt GS पेपर 1। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। और देखिए अगर GS की प्रिपरेशन आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना चाहते हैं, और अगर कंफ्यूज हैं कि व्हाट प्लेटफॉर्म यू शुड चूज वेयर यू कैन हैव ऑल योर नीड्स गेटिंग फुलफिल्ड, सो वी एट द एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू फाउंडेशन बैच फॉर 2026। अगर 2026 का अटेम्प्ट आपका टारगेट है और आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो कौन सा राइट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जाना चाहिए, जहां पर प्री, मेंस, इंटरव्यू, CSAT, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सारी आपकी जरूरतें पूरी हो, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं दोस्तों उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।